دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض اوقات کسی انسان کو آپ کی خاموشی نہیں ڈراتی بلکہ آپ کا بدل جانا ڈراتا ہے؟ کیونکہ خاموشی کو لوگ اکثر ضد سمجھ لیتے ہیں، نو کنٹیکٹ کو لوگ ایگو کا کھیل سمجھ لیتے ہیں، اور کئی بار وہ خود بھی اس کھیل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ خود بھی نو کنٹیکٹ اختیار کر لیتے ہیں، خود خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو سب سے زیادہ بے چین کرتی ہے، اور وہ ہے کسی انسان کا بدل جانا۔ ایسا انسان جسے وہ مکمل طور پر سمجھ چکا ہو۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ آپ ہمیشہ پہلے میسج کریں گے، ہمیشہ معاف کر دیں گے، ہمیشہ انتظار کریں گے اور ہمیشہ اس کی زندگی میں موجود رہیں گے، تو ایسا ایسا وہ آپ کی موجودگی کو معمول سمجھنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ آپ کہیں نہیں جا رہے، آپ ہمیشہ یہی موجود رہیں گے، اور یہی یقین اکثر انسان کو لاپرواہ بنا دیتا ہے۔ لیکن جب آپ موجود بھی ہوں اور پھر بھی پہلے جیسے نہ رہیں، جب آپ کی توجہ صرف اس کے گرد نہ گھومے، جب آپ کی خوشی صرف اس کے رویے پر منحصر نہ رہے، جب آپ ہر بات پر پہلے جیسا رد عمل دینا بند کر دیں، تب اس انسان کا ذہن الجھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اسے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بدل گیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو آپ کی اہمیت اس وقت محسوس نہیں ہوتی جب آپ ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ آپ کو پہلے کی طرح پڑھ نہیں پاتے، آپ کے بارے میں جان نہیں پاتے۔ زیادہ تر لوگ ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اپنی قدر محسوس کرانے کے لیے یا تو مکمل غائب ہونا پڑے گا یا مکمل خاموشی۔ لیکن انسانی نفسیات اتنی سادہ نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ آپ کی موجودگی یا غیر موجودگی نہیں ہوتا، مسئلہ پریڈکٹیبلٹی ہوتا ہے، یعنی سامنے والے کو آپ کے بارے میں کتنا یقین ہے۔ اور جب یہ یقین ٹوٹنے لگتا ہے، تب ایک ایسا نفسیاتی عمل شروع ہوتا ہے جو اکثر خاموشی اور نو کنٹیکٹ سے بھی زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ انسانی دماغ آخر کس کی قدر کرنا کب شروع کرتا ہے، اور کیوں بعض لوگ ہماری محبت کو تب تک معمول سمجھتے رہتے ہیں جب تک اسے کھونے کا امکان محسوس نہ ہو۔ تو شروع کرتے ہیں پارٹ نمبر 1، انسان کب کس کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سوال جتنا سادہ لگتا ہے، اس کا جواب اتنا ہی گہرا ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کسی کی قدر اس لیے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ محبت ختم ہو گئی ہے، دلچسپی ختم ہو گئی ہے، یا اور کوئی بہتر شخص زندگی میں آ گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کئی بار مسئلہ محبت کی کمی نہیں ہوتا، مسئلہ یقین کی زیادتی ہوتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسانی دماغ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ حساس رہتا ہے جنہیں کھونے کا امکان ہو، لیکن جن چیزوں کے بارے میں اسے مکمل یقین ہو جائے، وہ ایسا ایسا انہیں معمول سمجھنے لگتا ہے۔ ذرا اپنے تعلقات پر غور کیجئے۔ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ آپ ہر صورت اس کے میسج کا جواب دیں گے، اگر اسے یقین ہو کہ وہ آپ کو نظر انداز بھی کرے تو آپ پھر بھی اس کے پیچھے آئیں گے، اگر اسے یقین ہو کہ وہ سرد رویہ اختیار کرے، دیر سے جواب دے، آپ کی بات کو کم اہمیت دے، آپ کو کم ویلیو دے، اور پھر بھی آپ اسی شدت سے اس کی زندگی میں موجود رہیں گے، تو اس کے ذہن میں ایک خاموش سا احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک ایسا احساس جسے وہ شاید الفاظ میں بیان بھی نہ کر سکے، اور وہ احساس یہ ہے کہ یہ شخص کہیں نہیں جا رہا، یہ شخص میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب یہ سوچ مضبوط ہونے لگتی ہے تو تعلق میں توازن آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، کیونکہ اب وہ آپ کی موجودگی کو ایک نعمت، انعام یا آپ کا احسان نہیں سمجھ رہا، بلکہ ایک مستقل حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ بالکل اس طرح جیسے ہم روز سورج نکلتا دیکھتے ہیں لیکن اس پر حیران نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ کل بھی نکلے گا۔ انسانی تعلقات میں بھی یہی اصول کام کرتا ہے۔ جب کسی کو لگنے لگے کہ آپ کو کھونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہ لاشعوری طور پر آپ کی اہمیت کو کم محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ ہمیشہ جان بوجھ کر نہیں ہوتا، کئی بار وہ شخص برا بھی نہیں ہوتا، وہ صرف انسانی نفسیات کے اسی اصول کا شکار ہوتا ہے جس میں یقین قدر کی جگہ لینا شروع کر دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب تعلقات میں سب سے خطرناک تبدیلی جنم لیتی ہے، کیونکہ انسان آپ سے محبت کرنا بند نہیں کرتا بلکہ آپ کی موجودگی کو معمول سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کسی کی موجودگی معمول بن جائے تو اس کی غیر موجودگی ہی پہلی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو چونکا دیتی ہے۔ پارٹ 2، نو کنٹیکٹ ہمیشہ کام کیوں نہیں کرتا؟ جب کوئی شخص خود کو نظر انداز کیا ہوگا، غیر اہم یا جذباتی طور پر زخمی محسوس کرتا ہے تو عموماً اسے ایک ہی مشورہ دیا جاتا ہے، نو کنٹیکٹ شروع کر دو، کسی کو کال نہ کرو، میسج نہ کرو، اس کی زندگی سے مکمل طور پر غائب ہو جاؤ۔ اور سچ یہ ہے کہ بعض حالات میں یہ طریقہ واقعہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر تب جب سامنے والے شخص کے دل میں آپ کے لیے جذبات موجود ہوں لیکن وہ آپ کی موجودگی کو معمول سمجھنے لگا ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ نو کنٹیکٹ کو ایک جادوئی فارمولہ سمجھ لیتے ہیں،
जैसे ये हर इंसान और हर ताल्लुक पर यकसा असर डालेगा। हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि हर इंसान का ज़हन एक जैसा नहीं होता, हर इंसान की सोच एक तरह की नहीं होती, हर इंसान के तल्लुकात एक जैसे नहीं होते। हर शख्स मोहब्बत, कुर्बत और दूरी को एक ही अंदाज में महसूस नहीं करता। मिसाल के तौर पर कुछ लोग आपकी खामोशी को याद में बदल देते हैं। वो सोचते हैं काफी दिन हो गए, ये कहाँ है, सब ठीक तो है, शायद मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल देते हैं। वो आपकी खामोशी को दर्द या कमी नहीं समझते, बल्कि एक चैलेंज समझते हैं। उनके ज़हन में फौरन एक दिफाई रद्द-ए-अमल पैदा होता है। वो सोचते हैं कि अच्छा तुम बात नहीं करोगे, ठीक है मैं भी नहीं करूंगा, तुम दूर हो रहे हो, मैं और दूर हो जाऊंगा, और यूं एक अजीब जंग शुरू हो जाती है। जंग खामोशी की, अना की, इंतजार की जंग, जहां दोनों इंसान एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश करने लगते हैं। बाहर से खामोशी नजर आती है, लेकिन अंदर अंदर दोनों अपनी अपनी अना के कैदी बन जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि मसला हल होने के बजाय मजीद गहरा हो जाता है, और वो ताल्लुक जिसे बचाया जा सकता था ऐसा ऐसा कमजोर होने लगता है। इसलिए नफ्सियात में एक अहम बात कही जाती है, लोग ताल्लुकात को नहीं छोड़ते, लोग ताल्लुकात के बारे में अपने मैनी और तशरीहात के मुताबिक रद्द-ए-अमल देते हैं। अगर आपकी खामोशी को कोई शख्स मैं तुम्हें खो रहा हूं के तौर पर समझेगा तो वो आपकी तरफ आएगा, लेकिन अगर वो इसे तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो या तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो के तौर पर समझेगा तो वो और दूर जा सकता है। यही वजह है कि नो कांटेक्ट हर इंसान पर यकसा असरअंदाज नहीं होता, यकसा असर नहीं डालता, क्योंकि हर इंसान की अटैचमेंट स्टाइल मुख्तलिफ होती है, उसके खौफ मुख्तलिफ होते हैं और उसके तल्लुकात को समझने का तरीका कार भी मुख्तलिफ होता है। और यही बात हमें एक और ज्यादा गहरे नफ्सियाती असूल की तरफ ले जाती है, ऐसा असूल जिसमें आप गायब नहीं होते, लेकिन फिर भी सामने वाले के ज़हन में एक ताकतवर तब्दीली पैदा होने लगती है। पार्ट 3, न्यूट्रलिटी क्रिएट्स अनसर्टेनिटी। अब आते हैं इस पूरी गुफ्तगू के सबसे अहम नुक्ते की तरफ। इंसानी दिमाग एक चीज से सबसे ज्यादा बेचैन होता है और वो है अनसर्टेनिटी, यानी गैर यकीनी सूरत हाल। नफ्सियात के मुताबिक इंसानी ज़हन हर वक्त अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझने, उनके रवैयों की पेशगोई करने और उनके अगले कदम का अंदाजा लगाने की कोशिश करता रहता है। जब हमें मालूम है कि कोई शख्स क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और कैसे रद्द-ए-अमल देगा, तो हमारा दिमाग पुरसुकून रहता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपसे नाराज है तो आप समझ जाते हैं कि उसके रवैये की वजह क्या है। अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत करता है, आपको अहमियत देता है और बार बार अपनी दिलचस्पी जाहिर करता है, तब भी आपको अंदाजा होता है कि उसके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। यानी दोनों सूरतों में सूरत हाल वाज़ेह है, लेकिन असल उलझन वहाँ पैदा होती है जहाँ वजाहत खत्म हो जाती है। फर्ज करें एक ऐसा शख्स जो पहले हर बात पर जज्बाती रद्द-ए-अमल देता था, आपके एक मैसेज का इंतजार करता था, आपके रवैये से मुतासिर होता था, आपके नजदीक आने की कोशिश करता था, अचानक वो पुरसुकून हो जाए। वो अब भी बात करता है लेकिन पहले जैसी बेचैनी नहीं दिखाता। वो अब भी मौजूद है लेकिन पहली जैसी वाबस्तगी जाहिर नहीं करता। वो अब भी आपके आसपास मौजूद होता है लेकिन आपके नजदीक आने की कोशिश नहीं करता। और वो ना अब आपसे शिकायत करता है, ना आपसे लड़ता है, ना आपको मनाने की कोशिश करता है और ना ही मुसलसल अपनी मोहब्बत साबित करने में लगा रहता है। तब इंसानी दिमाग एक अजीब कैफियत में दाखिल हो जाता है। वो सवाल पूछना शुरू करता है, आखिर इसके अंदर चल क्या रहा है? क्या इसकी दिलचस्पी कम हो गई है? क्या इसने मुझे कबूल कर लिया है या छोड़ दिया है? क्या अब मैं इसके लिए उतना ही अहम नहीं रहा? और यही वो मकाम है जहाँ लातौल की अपनी असल ताकत दिखाती है, क्योंकि यहाँ आप गायब नहीं हुए, आपने खेल छोड़ा नहीं, आपने बदला भी नहीं लिया, लेकिन आपने अपने जज्बात पर इतना काबू पा लिया है कि अब आपको पढ़ना आसान नहीं रहा। और इंसानी दिमाग उन चीजों पर सबसे ज्यादा तवज्जो देता है जिन्हें वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाता। याद रखें, लोग हमेशा आपकी मौजूदगी से मुतासिर नहीं होते, कई बार वो आपकी गैर मुतवक्का तब्दीली से मुतासिर होते हैं। जब उन्हें महसूस होता है कि वो अब आपके रद्द-ए-अमल की पेशगोई नहीं कर सकते, तब पहली बार उनकी तवज्जो दोबारा आपकी तरफ आती है। और यही वजह है कि बाज़ औक़ात खामोशी से ज्यादा ताकतवर चीज खामोशी नहीं बल्कि एक मुतवाज़न, पुरसुकून और गैर मुतवक्का रवैया होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या न्यूट्रल होना अपने जज्बात को मार देना है या फिर इसके पीछे कोई और गहरा नफ्सियाती राज छुपा होता है?
पार्ट 4 इमोशनल डिटैचमेंट की असल ताकत। यहाँ बहुत से लोग एक ऐसी गलती करते हैं जो न सिर्फ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाती है बल्कि खुद उनकी शख्सियत को भी कमजोर कर देती है। वो समझते हैं कि न्यूट्रल होने का मतलब है इमोशन लेस होना, यानी एहसासात को खत्म कर देना, दिल को सख्त कर लेना और ऐसा जाहिर करना कि अब उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत में ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इमोशनल लेस होना बेहिसी है, न्यूट्रल होना पुख्तगी है। इमोशन लेस इंसान खुद को बचाने के लिए दीवार खड़ी करता है। वो किसी को करीब आने नहीं देता। वो बात करता है लेकिन दिल से नहीं। वो सुनता है लेकिन महसूस नहीं करता। बज़ाहिर वो मजबूत नजर आता है लेकिन अक्सर उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा, तकलीफ या खौफ मौजूद होता है। वो एक रद्द-ए-अमल दे रहा होता है। इसके बरक्स न्यूट्रल इंसान अपने जज्बात को दबाता नहीं बल्कि उन पर काबू पा लेता है। वो अब भी मोहब्बत करता है लेकिन मोहब्बत के नाम पर खुद को कुर्बान नहीं करता। वो अब भी ताल्लुक को अहमियत देता है लेकिन अपनी इज्जत को उस ताल्लुक के हवाले नहीं करता। वो जवाब देता है लेकिन हर 5 मिनट बाद तवज्जो मांगने की जरूरत महसूस नहीं करता। वो मौजूद रहता है लेकिन अपनी पूरी दुनिया किसी एक शख्स के गिर्द नहीं घुमाता। और यही वो मकाम है जहां असल में इमोशनल डिटैचमेंट पैदा होती है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब मोहब्बत खत्म हो जाना नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपकी ज़हनी कैफियत अब किसी दूसरे इंसान के रवैये की गुलाम नहीं रही। अगर वो खुश है तो आप खुश हैं, अगर वो नाराज है तो आप तबाह हो गए, अगर उसने जवाब नहीं दिया तो आप पूरी रात जागते रहते हैं, आप मुसल्ले पर बैठ जाते हैं, वजीफे शुरू कर देते हैं। ये जज्बाती इन्हिसार है, मोहब्बत नहीं। जबकि इमोशनल डिटैचमेंट आपको ये ताकत देता है कि आप किसी की कदर भी करें, उससे मोहब्बत भी करें और फिर भी अपने सुकून को बरकरार रख सकें। और यही तब्दीली सामने वाले इंसान को सबसे ज्यादा महसूस होती है क्योंकि पहले शायद वो जानता था कि आपके जज्बात के बटन कहाँ हैं। वो जानता था कि कब आप परेशान होंगे, कब आप मनाने आएंगे और कब आप खुद को कसूरवार महसूस करेंगे, कैसे आपको दबाया जा सकता है, कैसे आपको माफियों पर मजबूर किया जा सकता है। लेकिन जब आप जज्बाती तौर पर मुतवाजन हो जाते हैं तो वो पुराना कंट्रोल खत्म होने लगता है। तब पहली बार उसके ज़हन में एक नया सवाल पैदा होता है, क्या बदल गया है? ये पहले जैसा रद्द-ए-अमल क्यों नहीं दे रहा? अब मैं उसके जज्बात को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? और अक्सर यही वो लम्हा होता है जब लोग आपकी अहमियत को नए जाविये से देखना शुरू करते हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं है जो अपने जज्बात खत्म कर दे, बल्कि वो है जो अपने जज्बात रखते हुए भी उसका गुलाम न बने, जज्बात का गुलाम न बने। और जब आप उस मकाम पर पहुंच जाते हैं तो आप सिर्फ ताल्लुक को नहीं बदलते, आप अपनी पूरी शख्सियत की ताकत बदल देते हैं। पार्ट 5 ह्यूमन वैल्यू परसेप्शन। इंसानी दिमाग की एक अजीब आदत है। हम अक्सर किसी चीज की असल कीमत उस वक्त समझते हैं जब हमें महसूस होने लगता है कि शायद वो हमेशा के लिए हमारी नहीं है। ये सिर्फ मोहब्बत में नहीं होता, ये जिंदगी के तकरीबन हर शोबे में होता है। सेहत हो, वक्त हो, वलदैन हो, दोस्तों या कोई कीमती रिश्ता। इंसान अक्सर उन चीजों की अहमियत उस वक्त तक पूरी तरह महसूस नहीं करता जब तक उसे उनके खो जाने का इम्कान नजर न आने लगे। और यही असूल इंसानी तल्लुकात में भी काम करता है। बाज लोग आपकी मोहब्बत की कदर उस वक्त नहीं करते जब आप हर वक्त उनके लिए मौजूद होते हैं, क्योंकि उनके ज़हन में ऐसा एक यकीन पैदा हो जाता है कि आप कहीं नहीं जा रहे, आप हमेशा जवाब देंगे, आप हमेशा इंतजार करेंगे, आप हमेशा माफ कर देंगे और आप हमेशा उसके गिर्द मौजूद रहेंगे। और इसे वो आपकी मजबूरी समझता है। और जब उसे ये मजबूत यकीन हो जाता है तो मोहब्बत की मौजूदगी तो बरकरार रह सकती है लेकिन उसको मोहब्बत की कदर कम महसूस होने लगती है, क्योंकि इंसानी दिमाग अक्सर दस्तयाब चीजों को मामूल समझ लेता है। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदलना शुरू होता है। आप अचानक गायब भी नहीं होते, अपना ताल्लुक भी खत्म नहीं करते, आप सिर्फ अपनी जिंदगी को दोबारा अपनी जिंदगी बनाना शुरू कर देते हैं। आप अपने काम पर तवज्जो देने लगते हैं, अपने ख्वाबों पर वक्त लगाने लगते हैं, अपने ज़हनी सुकून को तरजीह देने लगते हैं। आप अब भी एहतराम से बात करते हैं लेकिन मुसलसल तवज्जो मांगना छोड़ देते हैं। आप अब भी मोहब्बत रखते हैं लेकिन अपनी खुशी को किसी इंसान के रवैये से बांधना छोड़ देते हैं। और यही वो मकाम है जहाँ सामने वाले के ज़हन में एक नई सोच जन्म लेती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि आपकी दुनिया सिर्फ उसके गिर्द नहीं घूमती, आपकी अपनी एक शनाख्त है, अपने ख्वाब हैं, अपनी तरजीहात हैं, अपनी जिंदगी है। और अक्सर यही वो लम्हा होता है जब लोग आपको नए जाविये से देखना शुरू करते हैं। इसलिए नहीं कि आपने उन्हें सजा दी है और ना ही इसलिए कि आपने कोई नफसियाती खेल खेला है, बल्कि इसलिए कि अब आपकी शख्सियत में एक ऐसी खुद मुख्तियारी नजर आने लगती है जो पहले दिखाई नहीं देती थी। याद रखें, इंसान की कदर उस वक्त नहीं बढ़ती जब वो दूसरों के पीछे भागता है। इंसान की कदर उस वक्त बढ़ती है जब वो अपनी जिंदगी, अपनी इज्जत और अपनी शनाख्त के साथ जीना सीख लेता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब आप खुद को अपनी खुशी का मरकज
मरकज बना लेते हैं, तब अक्सर वो लोग भी आपकी अहमियत महसूस करने लगते हैं जो पहले आपको एक यकीनी हकीकत समझते थे। क्योंकि इंसानी दिमाग सिर्फ मोहब्बत को नहीं देखता, वो उस मोहब्बत की कमी के इम्कान को भी महसूस करता है और कई बार यही इम्कान किसी की कदर को दोबारा जिंदा कर देता है। दोस्तों याद रखें, इस पूरी गुफ्तगू का मकसद किसी को तरसाना नहीं है, इसका मकसद किसी के जज्बात के साथ खेलना भी नहीं है, और ना ही ये किसी को सजा देने या उसे वापस लाने का कोई जादुई फार्मूला है, और ना ही मेरी वीडियो का ये मकसद है कि आप ये करें और वो शख्स वापस आपके पास आ जाएगा। असल मकसद सिर्फ एक चीज है, अपनी जज्बाती ताकत वापस हासिल करना। क्योंकि जिंदगी का सबसे खतरनाक लम्हा वो नहीं होता जब कोई आपसे दूर हो जाता है, बल्कि वो होता है जब किसी एक इंसान को बचाते बचाते आप खुद को खोना शुरू कर देते हैं। किसी इंसान को पाने के लिए आप खुद को खो देते हैं। जब आपकी खुशी उसके जवाब पर मुनहसर हो जाए, आपका सुकून उसके रवैये से जुड़ा हो और आपकी इज्जत उसकी तवज्जो की मोहताज बन जाए, तब मसला ताल्लुक में नहीं रहता, मसला आपकी अंदरूनी ताकत में आ जाता है। इसलिए सच्ची ताकत इसमें नहीं है कि कोई आपके पीछे भागे, सच्ची ताकत इसमें भी नहीं है कि किसी को आप अपनी कमी महसूस करा दें। सच्ची ताकत इसमें है कि आप अपनी इज्जत नफ्स बरकरार रख सकें, अपनी शनाख्त बरकरार रख सकें और अपने सुकून को किसी दूसरे इंसान के हाथों यरगमाल न बनने दें। दिलचस्प बात यह है कि जब आप वाकई इस मकाम पर पहुंच जाते हैं, जब आप मोहब्बत तो करते हैं लेकिन खुद को नहीं खोते, जब आप ताल्लुक को अहमियत देते हैं लेकिन अपनी कदर भी जानते हैं, तब अक्सर लोगों का रवैया खुद ब खुद बदलने लगता है। वो लोग भी आपको नए जाविये से देखने लगते हैं जिन्होंने कभी आपकी अहमियत महसूस नहीं की थी। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पुरकशिश चीज जरूरत नहीं है, बल्कि खुद एतमादी और खुद मुख्तियारी होती है। और अगर फिर भी कोई शख्स आपकी कदर न करे और अगर फिर भी वो आपकी मोहब्बत, एहतराम और मौजूदगी को मामूल समझे, तो कम से कम आप एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर चुके होंगे। आपने खुद को खोने से बचा लिया होगा। और यकीन माने, बाज औकात जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी किसी को हासिल करना नहीं होती, बल्कि खुद को दोबारा हासिल करना होती है। और यही इस पूरी तकनीक का असल मकसद है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।